یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ نیا نیا موٹرسائیکل چلائیں نا، میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا، آپ ریس زیادہ دے دیتے ہیں اور یکدم کلچ چھوڑتے ہیں۔ اس سچویشن میں جب آپ کلچ چھوڑتے ہیں، ریس زیادہ ہوتی ہے تو سائیکل کا بلکہ موٹر سائیکل کا جو اگلا ویل ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب پاکستانی تجزیہ کار موٹر سائیکل پر چڑھتے ہی کلچ دباتے ہیں، پوری ریس دے کر کلچ چھوڑتے ہیں اور پھر اگلا ٹائر ہوا میں کرتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلا ٹائر ہوا میں گیا، یہ تجزیہ کار ہیں پاکستان کے، جی شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے فوج پر تنقید کی ہے، اب مولانا عوام میں مقبول ہو جائے گا، یہ تجزیہ نگار ہیں۔ پھر تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، پھر اس ملک کے لاکھوں کروڑوں یوتھیے کھٹے رنگ کی پگڑیاں باندھ لیں گے اور اس کے بعد پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ ان ون ویلر تجزیہ کاروں کے پیچھے ان کے لاڈو رانیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو یہی والے جھولے جھولتے ہوئے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہائے اللہ اب کیا ہوگا۔ خدا کے بندو، سیاسی بیانیے ایسے سیلف سٹارٹ انجن نہیں ہوتے، نہ ہی مقبولیت ایک دو تقریروں کی ناک پر دھری ہوتی ہے۔ ایک سیاستدان کا ٹریک ریکارڈ، اس کی استقامت، اس کا موقف، اس کی اصول پرستی، پھر حالات ایک طویل جدوجہد کے ساتھ مل کر اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر اتنی جلدی مقبولیت ملے یا ملتی ہوتی تو فوج یا جرنیل سب سے پہلے خود کو مقبول کرتے، فضل الرحمان کو کیوں کرتے؟ جی اگر مولانا نے کسی اصول پرستی کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو پچھلے 30-40 سال میں 2 4 8 دفعہ 10 دفعہ تو کرتے۔ ریس کم کریں، کلچ آہستہ سے چھوڑیں اور اپنے تجزیے آرام آرام سے چلائیں اور یہ والی مثال سنیں۔ مدینہ کا گورنر ایک خاتون کی جبری طلاق کروانا چاہتا تھا۔ گورنر اہل بیت میں سے تھا، 2 کتابوں میں ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا جبری طلاق نہیں ہوتی، فتویٰ آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام مالک کو اٹھا لیا گیا، ڈالے پہنچ گئے، تشدد سے کندھے اکھاڑ دیے، کندھے ان کی اپنی جگہوں سے اکھڑ گئے، کوڑے مارے گئے، لیکن امام مالک نہ جھکے۔ گورنر ملنے آیا کہ شاید امام مالک رحم کی بھیک مانگیں گے۔ امام مالک نے کہا جا، تجھے معاف کیا کہ اہل بیت میں سے ہے، میں اہل بیت سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن فتویٰ برحق ہے، جبری طلاق نہیں ہوتی۔ گورنر غصے سے پاگل ہو گیا، حکم دیا اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر مدینہ میں گھمایا جائے۔ ایویں مقبولیت ایویں امام مالک کو گدھے پر بٹھا کر مدینہ گھمایا گیا۔ آپ بآواز بلند پکار رہے تھے، لوگوں جو نہیں جانتا جان لے، میں مالک بن انس ہوں، میں امام مالک ہوں، لوگ کہتے ہیں میں امام ہوں، جان لو اگر کالک کی وجہ سے منہ نہیں پہچان رہے تو میں مالک بن انس ہوں اور جبری طلاق نہیں ہوتی۔ گدھے پہ بیٹھ کے وہ ڈیالہ سے دھاڑتا ہے، ڈیالہ سے بولتا ہے کہ میں عمران خان ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ مولانا کہاں سے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، جو 1,66,000 میں سے
उन 2-3 हजार बंदों का ममनून है, मशकूर है, जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 जुलाई 2026 सोमवार, दूसरा टाकरा, दूसरी गपशप और दूसरी बैठक, आपको हालात से आगाह करना, चाहे वो पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान से बाहर के हों। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो इस वक्त जो पाकिस्तान का म्यारी वक्त है वो 5:30 बज रहे हैं पाकिस्तान में। हम आज जो मुद्दे डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने रखूंगा, अपनी उसमें राय भी होगी, तजिए भी होगा, जो मेरा होता है। जनरल आसिम मुनीर अगर 3 दफा फिर फील्ड मार्शल बन जाए, ये मैं आपको कई दफा कह चुका हूं कि कागजों पर लिखने से क्या होता है। मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं कि मैं जो है वो सदर हूं पाकिस्तान का, फिर तो ये कहना है एक बहुत बड़े आदमी का, मेरे बड़े फेवरेट हैं, आप भी जानते होंगे कि अगर जनरल आसिम मुनीर 3 दफा फील्ड मार्शल बन जाए, जो अर्दली है, लेला है, बटमैन है, चपड़ासी है, शहबाज शरीफ, वो 4 दफा वजीर आजम बन जाए, और जो काला यरकान है, जो कैंसर है, पाकिस्तान को लगा है, बेनजीर को कत्ल करने के बाद इसकी लाटरी निकली, आसिफ अली जरदारी, ये 6 दफा सदर बन जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते जो आपको बताना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आज डीजी ISPR वो दुनिया में होते तो आप देखते कि वो फजलुर रहमान को कितने करारे जवाब देते, क्योंकि जिस दिन सुहेल आफरीदी वजीर आला बने थे, वैसे सुहेल आफरीदी पे भी लानत डाल दें उन पे भी, और वो कबूल भी फरमा लें, तो ये पेशावर गए थे। पेशावर, ये पहली दफा हुआ कि कोई डीजी ISPR पेशावर जाए। कितने हमले हुए, कितने लोग शहीद हुए ना, पिंडी इस्लामाबाद बाजू चिल माहौल। उस दिन ये पेशावर गए और वहां पे जाके इन्होंने, इनके मुंह से एक एक फुट दूर झाग जा रही थी जो इन्होंने निकाली, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इनके GHQ को घेराव कर लिया, कोर कमांडर हाउस पे कब्जा कर लिया, शोहदा के ताने दे दिए, कारगिल के ताने दे दिए। लेकिन काश आज डीजी ISPR जिंदा होते, दुनिया में होते। वो आसूदा खाक हैं, एक नीम के दरख्त के नीचे रेस कोर्स कब्रिस्तान में, तो उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। उसके बाद 2.5 करोड़ खुदकश, ये इतना खौफनाक इंटरव्यू दिया है, यानी जो है ना वो वजीर खजाना ने, कि आप हैरान रह जाएंगे। और गिद्ध, उनका कहना है कि आप किताबें पढ़े ना, तो जो पुराने फाते थे, फाते मसलन तैमूर लंग, मसलन चंगेज खान, मसलन महमूद गजनवी, बस बहुत सारे, वो मुफ्तुए इलाकों पे आते ना, तो वो जो सलूक करते ना वहां पे आके, जो सलूक करते, आपको पता है फाते जो है ना वो किस तरह सलूक करते हैं। तो ये हुक्मरान इस तरह सलूक कर रहे हैं कि ये कहीं बाहर से आए हैं, 25 करोड़ के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, 25 करोड़ के हालात से ये वाकिफ नहीं है। ये बिल भेज रहे हैं धड़ाधड़, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं जिस तरह ये, और इंतकाम बाकी ले रहे हैं। 8 फरवरी 2024 के साथ में जो इमरान ने इनके साथ कर दिया, जर्नैलों के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, माफियाज के साथ, ये तो किताबें लिखी जाएंगी ना, ये तो किताबें लिखी नहीं जाएंगी। आप बाजार में जाएं, किताब लाइब्रेरी भरी हुई नहीं है दुकानें किताबों की, याया खान के बारे में, भुट्टो के बारे में, तो ये तो किताबें लिखी जाएंगी कि एक बंदा खुद नायल हो गया, खुद जेल में है, पार्टी पे रंदा फेर दिया गया और वो 2/3 अक्सरियत ले गया। ये करीब करीब कभी सुना है किसी मुल्क में सुना हो? डोनाल्ड ट्रंप के जो थे, जो है ना वो सपोर्टर्स, उन्होंने जो है ना वो क्या किया था वहां कैपिटल हिल पे, ट्रंप जो है ना फिर सदर बन गया। तो ये जो है वो गिद्ध नोच रहे हैं, गिद्ध, और इनको कभी नहीं भूलेगा जो खान ने इनके साथ कर दिया है।
फिर GHQ को इमरान के मनाने, यानी इमरान खान को मनाने के लिए 21 दिन दिए गए हैं। ये बड़ा इंकशाफ किया है एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने, ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन पहले बुलेटिन, यानी वो जो है ना खबरें, ताज़ा तरीन पहली खबर ये है कि ईरानी वजीर दाखिला, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, ये पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि सऊदीया के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अगर मुआहदे से डेविएट कर गया है, अगर मुआहदे से दस्तबरदार हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खलीज पर, और हम जो है वो हमले जारी रखेंगे। 3 जो अमरीकी हैं उनकी हलाकत पे ये तस्लीम किया है, ये अमेरिका ने तस्लीम किया है कि 3 अमरीकी हलाक हुए। उनकी हलाकत पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा सीख पा हैं। उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ नहीं खुली, शदीद बमबारी जनूबी ईरान में, इसके अलावा जो है ना वो तब्रेज में बहुत सारे शहर उसकी लपेट में हैं, पुल, मेट्रोज, इसके अलावा रेलवेज, इसके अलावा जो जजीरे हैं ईरान के बड़े कीमती जजीरे, वहां पे शदीद बमबारी जारी है। लेकिन अबनाए हुर्मुज़ में जहाज परली साइड पे खड़े हैं, उनको गुजरने की इजाजत नहीं है। अगर वो गुजरते हैं तो फिर पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने वार्निंग जारी की हुई है। कुवैत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुवैत में एक बड़ा महंगा सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का, रेडार। अब जानते हैं कि जो जदीद जंग है वो रेडार उसमें क्या अहमियत रखता है और वो खबर देता है पहले वो सिस्टम जो है। और अमेरिका इस बात पे हैरान है और अमेरिकी जो हुकाम है वो हैरान है कि इतना जो सही निशाना कैसे लगता है ईरानियों का। फिर ऑटोमेटिकली उनका जहन जाता है चीन की तरफ और उनका जहन जाता है रशिया की तरफ कि जी वो इनको जो है ना, जो साइबर, पता है आपको आजकल कंप्यूटर जिस तरह वीडियो गेम्स होती हैं वही हाल है आजकल, तो उनका कि जी निशाना बड़ा पक्का लगता है। ईरानी किस तरह निशाना बना लेते हैं, रेडार सिस्टम जो है वो तबाह हो गया है। ये लौंडा है जी जरदारी का, ये कश्मीर में जाके इस तरह शो कर रहा है कि जो पाकिस्तान में हुकूमत है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका प्यो 2 नंबर सदर है, वो जो मुल्तान का पोप है पीर वो 2 नंबर चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर 2 नंबर है, ये सारे वो ओहदे ले लिए। लेकिन वहां पे तकरीरें कर रहा है कि ये अपोजिशन में है। ये अब गुजर गया जमाना, फे चे गुजर गया। आपको पता चल जाएगा अगर वोट ठीक पड़ गया ना, और उम्मीद है ठीक पड़ेगा वोट, कश्मीरियों ने साबित किया है, वरना फिर वो कश्मीर बंद कर देंगे। इनका इलाज यही है, इनका इलाज यही है, बंद कर दें बिल्कुल। बहरहाल जी वो कहता है कि अभी तक ख्वाजा आसिफ को काबीना से नहीं निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रावला कोट वाले तो कश्मीरी हैं ही नहीं। अब ये कश्मीरियों को चाचा मामा बन रहा है, ये 2 in 1 कि जी उस वजीर को निकाला जाए। उस वजीर को निकालने से क्यों, तो दुनिया का बेशर्म तरीन आदमी है, वो तो दुनिया का बेहया तरीन आदमी है। उसका जो बाप था वो ज़िया के तस्मों से बंधा हुआ था, ख्वाजा सफदर, और ये बदमाश थे उस वक्त सियालकोट में। इनकी इतनी बदमाशी चलती थी ज़िया के दौर में, क्योंकि वो शूरा का मेरा ख्याल है चेयरमैन था या क्या था इसका बाप। तो ये कौन है, ख्वाजा आसिफ कौन है? ख्वाजा आसिफ की तो इतनी औकात है कि उस्मान डार से हारा, बाजवा ने जितवाया, उस्मान डार की मां से हारा, आसिम ने जितवाया, इसको तो लोगों ने वोट नहीं दिए। वो वहां कश्मीर में तड़ियां लगा रहा है जी ख्वाजा आसिफ को। एक सनतकार है और नून लीग के बड़े करीब हैं, इन्होंने टीका लगाया है जी 12 अरब रुपए का बिजली में। मैं आपको कहता हूं ना, बिजली ये जलाते हैं, आपका 10,000 का बिल आता है ना, उसमें 2500 या 3,000 की आप बिजली जलाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा 61,000 का बिल आया है, 61,000 जून का। अब उसमें मैंने बिजली जलाई होगी 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। बाकी ये है जी सितारा केमिकल फैसलाबाद में फेस्को के साथ मिलके इन्होंने टीका लगाया 12 अरब रुपए।
और पता नहीं गिरफ्तार क्यों हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आई। हिस्सा नहीं दिया या क्या इसका चक्कर चला है। इसने 12 अरब की बिजली चोरी की है। मियां वहीद मेरा ख्याल नाम बता रहे हैं, और हस्ब मामूल शरीफों के साथ तस्वीरें हैं। यानी शरीफों की तस्वीरें आप किसी तबलीगी के साथ, किसी बंदे ने पुत्र के साथ, किसी दयानतदार के साथ, उनके साथ नहीं देखेंगे। रेपिस्ट के साथ, डाकुओं के साथ, ठगों के साथ, नौसरबाजों के साथ, उनके साथ जिनसे ये डरते हैं, जिनसे ये खुद डरते हैं, उनके साथ इनकी तस्वीरें। तो इनकी तस्वीर जो 12 अरब, ये जा रहे थे, निकल रहे थे, और एयरपोर्ट पे इनको रोका गया है और इनको नहीं जो है वो जहाज पे सवार होने दिया गया। खबर है एजाजुल हक, आप जानते हैं कौन है एजाजुल हक? ये ज़ियाउल हक के बेटे हैं। बेशरम आदमी है और बेहया आदमी है, क्योंकि ये शौकत बसरा से बुरी तरह हारा, कोई 40-50 हजार की लीड से। लेकिन वो गंगा बह रही थी, इसने भी हाथ धो लिए। फिर शौकत बसरा इसके बाप की कब्र पे गया, वहां पे फॉर्म 45 लेके गया। इनके बाप या इनको बापों की इतनी होती, या इनके बापों को इनकी इतनी होती। यानी वो अमेरिकन, मैंने आपको बताया था ना कि जरूरत के बाद गधे को बाप बना लो और बाप को गधा बना लो। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि पहले अब्बू से मेरी 4 अम्मियां हैं और पहली अम्मी से मेरे 6 अब्बू हैं। ये जो है ना, ये इनकी सिचुएशन है। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है, क्योंकि ये चीफ का बेटा है, और फिर चीफ ज़ियाउल हक का, जिसने 10-11 साल पाकिस्तान पे इस्लाम नाफिज किए रखा। इन्होंने इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट को, और इन्होंने कहा है कि वाज़े तौर पे बेनजीर और नवाज शरीफ जैसी डील ऑफर की गई है इमरान खान को, और बात हो रही है। इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में जमानत के हवाले से डॉक्टर उज़मा की पिटीशन होती है कि भाई से मुलाकात करवाई जाए। तो वो जो लुच्चे बैठे हैं, वो जो काली जोंकें बैठी हैं, इटली वाले बाबा कहते हैं कि एक जोंक लगी हुई होती है गाय को, जोंक समझते हैं ना, जो खून चूसती है। एक जोंक लगी हुई होती है भैंस को। वो तो जाहिर है कि हैं तो हलाल ना, हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं। ये जो जोंक है ना काले गगरों वाले, ये वो जोंक हैं जो सुअर को लगी हुई है, सुअर को, और उसका खून सक कर रहे हैं। वो कहता है जवाब मांगा, 3 हफ्ते दिए जवाब मांगने के लिए अडयाला जेल को, 3 हफ्ते, कि 3 हफ्तों में जवाब दिया जाए। मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो एजाजुल हक ने कहा है ये जो 21 दिन दिए गए हैं, ये कोई दरमियानी रास्ता। एजाजुल हक ने कहा कि तख्त जो है वो गिरने वाले हैं, ये भी कहा। हुकूमत किसकी है पाकिस्तान में कोई नहीं पता। हुकूमत भाग दौड़ कर रही है मुल्क चलाने के लिए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। सऊदीया के सामने गिड़गिड़ाए हैं, और कोई पता नहीं है कि ये पैसों के चक्कर में ईरान पे हमला भी कर दें। ये इजम्पशन है, यानी अगर इनको सऊदीया अच्छे खासे पैसे दे तो। बहरहाल एजाजुल हक ने इंकशाफ किया है कि ये जो 21 दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आने वाला हर दिन वो बैन अल-अक़वामी सियासत में ये इंपॉर्टेंट होगा। सभी काज़मी ने जो है ना वो इंकशाफ किया है कि अमेरिका भी अब, सभी काज़मी नहीं, सॉरी, फयाज राजा कि जो है वो अमेरिका भी इनको आंखें दिखा रहा है कि हमारे काम करो वरना खान बरी है। और इन पर जो पाबंदियों का बिल है उन पे भी कपड़ा मारा जा रहा है, जो विल्सन ने जो पेश किया था अमेरिका में। तो बहरहाल जी इन पे दबाव हर तरफ से आ रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से बात हो जाए, खान साहब बात मान जाएं। मिन्नतें तरले जारी हैं, घुटने पकड़ना जारी हैं। ये एजाजुल हक ने जो है वो तस्दीक की है। उसके बाद है हफीज पाशा। हफीज पाशा जो है, कभी आप इनको सुने ना, बड़ी मजेदार गुफ्तगू करते हैं। ये साबिक वजीर हैं, वजीर रहे हैं खजाना के। ये कहते हैं कि 1990 तक,
1990 तक पाकिस्तान स्टेबल था। अमीर अब्बास को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, अगर आपको टाइम मिले मैं तो थोड़ा सा जिक्र करूंगा, वो इंटरव्यू लाजमी आप सुने, आपको पाकिस्तान की कंडीशन का पता चलेगा। हम भी आपको रोज बताते हैं ना, आप बोर होते हैं कि यार पत्नी क्या कहते रहते हैं। हफीज पाशा को आप सुने, वो प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि 1990 तक ना पाकिस्तान स्टेबल था, 5.5 वो ग्रोथ बता रहे थे और कीमतें ग्रोथ ये सारा कुछ ठीक था। 1990 के बाद ऐसा रिवर्स लगा है मुल्क को, ऐसा रिवर्स लगा है, यानी उन्होंने क्या आदाद शुमार बताए हैं जरा गौर करना है। 2.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, 2.5 करोड़, जिनको मां बाप ताने देते हैं, जिनको मुआशरा ताने देता है, जिनको रिश्तेदार ताना देते हैं। डॉक्टर सार अहमद कहते हैं कि आपका बेटा कहता है मैंने एफएससी करना है, करवाएं। आपका बेटा कहता है मैंने बीएस करना है, करवाएं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं जब कर लिया ना, आप उसे कहें कि शाबा अब अपना रिस्क पैदा करो। कहां से करे? डॉक्टर साहब तो ठीक कह गए, कहां से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पाकिस्तान में बड़े मंसूबे, कोई डैम्स के, कोई तरक्याती जहां पे नौकरियां प्रोड्यूस हो। 2.5 करोड़ ये है खुदकश बम्बार, ये इस तरह डी ट्रैक होते हैं, इस तरह नशा पत्ता, इसके अलावा दहशत गर्दी। बलूचिस्तान में नहीं भर्ती हो रही, केपीके में नहीं मिल जाते आपके सामने। आप किसी और शहर पे रहते हैं और मैं किसी और शहर पे रहता हूं। 45%। अच्छा ये हो गए 2.5 करोड़ नौजवान। अब ये 2.5 करोड़ नौजवान किसी न किसी खानदान का हिस्सा है। मसलन मेरा बेटा है, मसलन आपका बेटा है, मसलन आपके भाई का बेटा है, आपकी बहन का बेटा है। ये 2.5 करोड़ खानदान हो गए। वो कहते हैं कि जो गुर्बत है वो हुकूमत झूठ बोलती है। ये हफीज पाशा के अल्फाज हैं। 45% पाकिस्तानी गरीब हैं, 45%। उन्होंने म्यार क्या रखा है? उन्होंने म्यार रखा है 50,000 रुपए महीना। 50,000 महीना, तब 45% गुर्बत है। जो इससे कम कमा रहे हैं तो हुकूमत तो कहती है 8,500। वो हुजैफा रहमान पता नहीं कहां से आ जा गए हैं ये लोग। मुशर्रफ के दौर में इतने आ गए थे, वो पता नहीं मर फिट गए टीवी पे टाइयां कोड लगा के। ये नया रजीम आता है, ये अब हुजैफा रहमान पता नहीं किधर से पकड़ लाए हैं। वो एक अकील मलिक है, वो किधर से पकड़ लाए हैं। ये जिस तरह आप सावन है तो वो रात को डाडोर, हमारी जुबान में डाडोर कहते हैं मेंढक को, बड़े बड़े मेंढक को ट्रॉ 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 वो रात को करते हैं देहातों में, ये निकल आते हैं। इस किस्म का रजीम हो ना, हाइब्रिड 2 नंबर रजीम। तो ये हुजैफा रहमान, ये बैरिस्टर अकील, ये कहां से आते हैं, किधर से आते हैं, इनका माँ प्यो कौन है, इनको वोट कौन देता है, बहरहाल ये निकल आते हैं जालिम रजीम में। वो कह रहा है 120 की रोटी पेट भर के खाएं। कहां से? तुम्हारे घर हो, आपके घर आ जाया करें 120 रुपए की रोटी खाने। और लानती आदमी, ये रोटी 9 रुपए महंगी रोटी लाहौर में, और नान 10 रुपए महंगा नान भाइयों ने कर दिया। आज की खबर है, जंग की खबर है, जंग की, जो तुम लोगों की माओ को जहेज में मिला था, जंग और जियो, उसकी खबर है। कहां पे 120 रुपए का खाना पेट भर के मिलता है? हाँ ये अलग बात है, दस्तरखान जब वो इमरान खान वाले बनागा, वो उनकी बात नहीं कर रहा, कमर्शियल बात कर रहा हूं। वो कह रहा है जी कि 120 में खाना खाएं। फिर ये मजाक उड़ाते हैं लोगों का। हफीज पाशा कहते हैं कि 45% जो 50,000 से कम कमा रहे हैं, अगर 8,500 पे जाएं तो 8,500 पे तो फिर इनके ठीक है। ये कहते हैं 12% गुर्बत है, 11% गुर्बत है। हफीज पाशा म्यार मुकर्रर करते हैं 50,000। पता नहीं मैं आपको बात समझा पा रहा हूं या नहीं, कि जो लोग 50,000 तक कमा लेते हैं वो 45% गरीब हैं। वो ये म्यार हफीज पाशा ने रखा है।
इन्होंने तो रखा है 8,500। फिर कौन 8,500 तो जो मजदूरी करता है, जो पंचर लगाता है, वो भी कमा लेता है। फिर तो गुर्बत है ही नहीं मुल्क में। और जरा बाजार का चक्कर लगाएं, जूते, कपड़े, आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल, जरा पता लगाएं कितने का रेट है। आपने तो लेना नहीं है, आपका तो हराम का है। आपकी तो माओं की, बहनों की, बीवियों की, घर वालों की कमाई है, वो तरक्कियां दिलवाती हैं। इशराफिया, उनके आपस के ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारी है। आप तो बाहर खाते हैं, यानी आपको क्या, ये तो इज्जतदार लोग। अभी आपको इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया ना, मैं इमाम मालिक हूं बादशाह के सामने। वो हुज़ैफरमान कह रहा है 120 का खाना पेट भर के मिल जाता है। तो डॉक्टर फीस जो है ना, पाशा कहते हैं कि 2.5 करोड़ ये खुदकश बम्बार तैयार हो रहे हैं, 45% को। फिर आगे क्या कहते हैं, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बताएं, ये रोजाना जो आप केसेस सुनते हैं, ये कौन से केसेस होते हैं? अल्लाह माफ करे, बच्ची, बच्चा, दुकानदार, ये गलियों में फिर रहे होते हैं। वालिदैन भी थोड़ा नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं, मुआशरा भी इसी तरह है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल नहीं जाता। इनसे जरा पूछें, वो देखा नहीं है रजादार, वो शायद मैट्रिक को, लेकिन वो वेनेजुएला और हॉलैंड की लड़कियों के साथ बिजनेस कर रहा था। अलीडार से पूछ लें कितना पड़ा हुआ है। इनके बच्चे, वो यानी जब पेट से दाई निकालती है खींच के, तो वो CEO होते हैं। इनके बच्चे, वो नवाज शरीफ के 2 गेंडे, वो कितने पड़े हुए हैं। बोलने का चज नहीं है उन गेंडों को, बोलने का कि बोलते किस तरह हैं, लेकिन वो अरबपति हैं, वो तो इनके बच्चे हैं। और यहां पे वो 2 करोड़ और 60 लाख स्कूल में भी नहीं जाते। मैंने आपको सुबह जो बताया कि ये 25 करोड़ दिखा के ये माल मांगते हैं। इन्होंने अफगान मुहाजिरीन दिखा दिखा के इतना माल खाया है, पता है आपको कितना माल खाया है यूनिसेफ से, खाते खुद थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको एक जगह पे रखने के लिए मुहाजिरीन को इनको पैसे दिए, गन्नुम दी, डॉलर्स दिए, कुकिंग ऑयल, कसम खुदा की मैंने आंखों से देखा। ये खा पी गए, ये खा पी गए। और मुहाजिरीन को क्या किया, उनको छोड़ दिया, निकल जाओ, जिधर मर्जी जाओ। वो निकल गए, सेटल हो गए। ईरान वालों ने कहा कैंप से बाहर निकले टांगे तोड़ देंगे, फिर भी ईरान को कितना डैमेज किया उन्होंने। और यहां पे खुदा न खास्ता ज्यादा मामला खराब हो गए तो हमें मार मार के निकाल देंगे, जितना यहां पे अफगान रहता है। और जितने उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए पैसे दे दे के, ये तो वो सिस्टम है। मुहाजिरीन को दिखा दिखा के जिया दौर से लेकर आज तक इन्होंने माल खाया है। हमारे पास इतने मुहाजिरीन हैं, हमारे पास, और उनको छोड़ दिया, मुहाजिरीन को छोड़ दिया कि जो जिधर जाना है जाओ, शादियां करो, कारोबार करो, सारा कुछ करो। ये वो लोग हैं। इनका रवैया, यानी गिद्ध के बारे में आप जानते हैं, वल्चर, ऐसा अल्लाह पाक ने कोई चीज बनाई है, यहां पे मुर्दार पड़ा है, यहां पे मीलों दूर उसको पता चल जाता है, मीलों दूर। जिस तरह ये 12 अरब वाले भाग रहे थे, पकड़े गए। अच्छा, एक तो वो वहां पहुंच जाता है, गिद्ध पहुंच जाता है, पता चल गया उसे। फिर क्या करता है, खाता है खाता है खाता है, यहां तक आ जाता है, यहां तक। फिर पता क्या करता है, भागता है। ये भागता है, कभी डिस्कवरी पे या किसी पे देख लें, ये भागता है। यानी तकरीबन आप अंदाजा कर लें 40-50 मीटर भागता है ना, तो वहां पे जाके जो कुछ खाया होता है वो उगल देता है, एज इट इज उगल देता है। यानी यहां पे खाया, भागता है, उधर जाता है, उगल देता है, फिर वापस आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। गिद्ध, इसको गिद्ध क्यों कहते हैं? ये कौन है? एक
इतना कमा लिया, इतना, जाके स्विट्जरलैंड उगल दिया वापस, दुबई उगल दिया वापस, मेफेयर उगल दिया वापस। आजकल वो उधर आजरबाईजान और काजाकिस्तान, वो सारी 2 नंबर रियासतें, उधर इनकी जो है ना दौड़े हैं, उधर उगल दिया वापस, फिर ये इसी तरह करते हैं। गिद्धों का कब्जा है, गिद्धों का यहां पे। जिस तरह मैंने बताया कि कुछ भी जो है ना नहीं छोड़ा फजल रहमान ने, कुछ भी। DGSPR, फिर कहते हैं ये गेम नहीं है, फिर कहते हैं नूर कुश्ती नहीं है। हिंदुओं ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को पहाड़ों पे अमानतन दफनाया। DGSPR नेपाल गए हुए हैं, कोई पता नहीं, आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथियों को सांस बंद कर देंगे। वो कोई लीडर कह रहा है 2% का JUI का कोर कमांडर हाउस पे कब्जा कर लेंगे, कोई कह रहा है DHA हमें दे दें, कोई कह रहा है 3000 अरब यहां पे अगर होती। PTI आज हाफिज नईम साहब कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि ये मुल्क जो है वो जनरल आसिफ मुनीर का नहीं है, नवाज शरीफ का नहीं है, जरदारी का नहीं है, हमारा मुल्क है। फिर उसके बाद ये तकरीर जबरदस्त करके मेरा ख्याल है वो जो है ना अमीर साहब वो चले गए होंगे, मंसूर है, जाहिर है मौसम भी खराब है, फिर कभी आएंगे। एवं गलनाल हमारा है, एवं अभी जो इमाम मालिक का बताया है, सोटे खाओ, डंडे खाओ, बस ये तकरीर करके थी, चलो। एवं नहीं होता, एवं वो देखे ना कश्मीरी क्या किया उन्होंने, बाहर बैठे रहे। ये पता नहीं इन्होंने जमातें क्यों बनाई हुई हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन्होंने जमातें क्यों बनाई हुई हैं। अगर मुआशरे में बेहतरी नहीं लानी तो इन्होंने जमातें क्यों बनाई हुई हैं। फलां जमात, फलां जमात, फलां जमात, मुल्क का जो हाल हो गया, जमाती जमातें, जमाती जमातें। आप जमात इस्लामी वाले कहेंगे कि पीटीआई पे लानत भेजें, भाई मैं भी लानत भेज रहा हूं, आप इमरान की बात करें। तो DGSPR यानी उस दिन भी आपको बताया फजल रहमान के 300 मुकदमे बनाए, उसमें इद्दत का भी हो, इद्दत का। फजल रहमान को धुएं, फजल रहमान को डांगे मारें, सोटे मारें, उसके घर का दरवाजा तोड़ें, उसके घर 3-3 घंटे मुसलसल आंसू गैस फेंकें, उसके बेटे को घसीटें, उसकी घर वाली पर्दादारणियां या जो भी हैं उनको रोड पे लाएं, उनको रोड पे लाएं। 10,000 जमीयत के अरकान से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएं, 10,000, 20,000 कोई जो है ना मुकदमे बनाए, तो मानवरों को मारो, सोटे, रोडंते, फिर है नहीं तो ये पूरा कुश्ती है, सारे मिले हो जाओ, सारे हिक्के थैली ना आटा, सारे बिल्कुल। वरना मैंने आपको बताया कि DGSPR अगर यानी हयात होते तो अब तक वो क्या कर चुके होते, कौन कौन से आर्डर दे चुके होते। लेकिन अल्लाह की मर्जी, जवानी में उठा लिया अल्लाह ने। हम उनकी मगफरत के लिए दुआ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने उनको उठा लिया, वो चले गए। अगर आज होते तो JUI पे यानी झाग उभारते, झाग निकालते, उनकी आंखों से अंगारे निकलते। ये सत्तार खान है, बहुत बड़े और सीजनड सहाफी हैं, जरूर इनको सुना करें। सत्तार खान कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल ये जो आसिम मुनीर हैं, ये 3 दफा फील्ड मार्शल बन जाए, 3 दफा। इमरान का कोई इलाज नहीं। चपरासी 4 दफा वजीर आज़म और बन जाए, इमरान का कोई इलाज नहीं। काला यरकान 6 दफा सदर बन जाए, इमरान का कोई इलाज नहीं। कौम फर्ज कर चुकी है, वो है ना, हम दिल दे चुके सनम, कौन दिल दे चुकी है। चाहे कोई कहे कि वो नून लीग है, कोई कहे पीपल्स पार्टी है, उसकी अदा पे, उसकी कुर्बानी पे हम खुद दिलेर ना हो, हमारा ये एक साइकी है, हम खुद दिलेर ना हो
یہ جو برصغیر کے لوگ ہیں یہ دلہا بھٹی بڑا پسند کرتے ہیں دلیر آدمی کو، اگر خود نہ بھی ہوں تو۔ یہ ادھم سنگھ کو بڑا پسند کرتے ہیں، یہ بھگت سنگھ کو بڑا پسند کرتے ہیں، دلیروں کو، خود دلیر نہ بھی ہوں تو۔ عمران ان کو پسند ہے، جو مرضی کر لیں۔ ستار خان نے کہا ہے 3 دفعہ فیلڈ مارشل، ایک دفعہ اور بن جائے۔ مجھے تو اب نہیں پتا کہ فیلڈ مارشل کے بعد اگر کوئی چیز ہو تو وہ بن جائے۔ پھر کی چیز ہے فیلڈ مارشل بننے سے کیا ہوا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہو، کوئی اور پلاٹ پلوٹ چھک دے انتظام، یا پینشن تا حیات استثناء، یعنی جب تک 2 انگوٹھے سفید پٹی سے نہیں باندھے جاتے جنرل آصف منیر کے، اور انہوں نے ناک روئی نہیں تنی ہے نہیں روئی اتنے تک وہ فیلڈ مارشل ہے۔ اور قبر یعنی قبر کے اب 3 دن تک فیلڈ مارشل رہیں گے یا 40 دن تک، اس کا بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا باضابطہ کہ وہ وہاں پہ ایک ادھر بٹھائی جائے گی، جو ہے نا وہ یونٹ ادھر بٹھائی جائے گی کہ فیلڈ مارشل نہیں قبر ہے۔ وہ کیڑے چکران چاہو سر جی، وہ 6 فٹ 5 انچ نہ فیلڈ مارشل ریحانہ گاؤں کا نام سنا ہے؟ اتھے قبر ہے، اتھے ہری پور ہے، پتہ نہیں کدائیں کوئی گیا؟ وہ 6 فٹ 5 انچ نہ فیلڈ مارشل جس پہ جیکولن کینڈی عاشق آئی، جو لنڈن بی جانسن کا گال ٹیپ کرتا تھا اس طرح، وہ فیلڈ مارشل تواری کے حیثیت نے مقابلے جڑا 1000 گنا تواری کول چنگا آئی، 1000 گنا ڈیم بنا گیا، اور بھی ہاں ٹھیک ہے غدار آئین توڑا، لیکن اس رجیم کو ٹھیک آئی۔ آپ اپنی قبر پہ ایک یونٹ بٹھا دیں بھائی فیلڈ مارشل ہی قبر ہے، اتنے دم درود کرو، جتنی دفعہ مرضی بن جائیں۔ عمران خان ہے، ورنہ ہر کسی نے، آپ اس کو مار رہے ہیں، آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، آپ کی بیعت نہیں کرے گا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل بن کے دیکھ لیں۔ ستار خان کہہ رہا ہے عمران کا کوئی توڑ نہیں ہے، مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا۔ عمران خان کو اقتدار دیں، عمران خان پہاڑ جتنی غلطیاں کرے، قوم عمران خان سے مایوس ہو۔ یہ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، قانون، آئین، عدل ہر کسی کے لیے لازمی کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ عمران غلطیاں کرے، لوگ مایوس ہوں، اور پھر عمران ختم۔ ویسے نہیں، ٹینڈیٹی ٹینشن نال نہیں، آپ نے اور فیلڈ مارشل بننا ہے تو اور فیلڈ مارشل۔ میں پیتا ہوں پتلا پانی، آپ اور فیلڈ مارشل میں اور فیلڈ مارشل، نشہ بڑھتا ہے فیلڈ مارشل جو فیلڈ مارشل میں شامل ہوں، شرابیں جو شرابوں میں ملیں، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ احمد فراز نے کہا نشہ بڑھتا ہے جو فیلڈ مارشلوں میں ملیں، لیکن نشہ نہیں بڑھے گا۔ عمران کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔